Okay, friends, so once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, your teacher as well, all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter that is gravitation. So far, the approach of your physics was mainly based on the motion, but this is something different chapter. In this chapter, we are going to study a gravitational force, gravitational acceleration, variation of the acceleration with the depth, height, etc. We are also going to discuss gravitational potential energy later on. But today we are going to discuss some numerical. अभी मैं है ना लास्ट लेक्चर में हमने जो भी कुछ डिस्कस किया था उसके बैकग्राउंड पे कुछ कंफ्यूजन्स लिख रहा हूँ और फिर उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. So friends, uh, let me share the whiteboard. क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके फाइन. ओके सो फ्रेंड्स, ओके so what we had learnt previously, we discussed some Kepler's law. So let's write down some conclusions regarding the Kepler's law. What was the first law? Anybody remember? किसी को याद है फर्स्ट लॉ कौन सा था? Law of orbit. Very good. Law of orbit. So that was the law of ऑर्बिट. और उसमें क्या था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के आसपास एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट होते हैं. सो दैट वी हैड लर्नड. उसमें एक जो होता है वो मेजर एक्सिस होता है, दूसरा माइनर एक्सिस होता है एंड सन इज एट वन ऑफ द टू फोकस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट. तो यहाँ पे कहीं पे सन होगा और उसके आसपास प्लैनेट्स यहाँ पे रिवॉल्व होंगे like this way. So that was the Kepler's first law. Chalo, anybody know what is the second law? Kepler's second law? Law of area. Very good. So second law was a law of area. और उसके अंदर क्या था कि एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट. सन को अगर प्लैनेट के साथ हम कनेक्ट करते हैं, सन को अगर हम प्लैनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो सन एंड प्लैनेट को जो कनेक्ट कर रही है जो लाइन, वो जो एरिया ट्रैवल करेगी, एरिया स्वेप करेगी, वो पर यूनिट टाइम कांस्टेंट रहेगा या फिर इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में स्वेप्ट होगा. तो आई कैन से द एरियल वेलोसिटी, area swept by the line joining the sun and planet per unit time, which is Constant. also known as a Aerial velocity. and the formula of that was given by angular momentum L upon 2m, and that is always remaining constant, and it is a consequence of which conservation law? Angular momentum. Angular momentum. Can be proved Conservation. by conservation of angular momentum. चलो
किसी को याद है व्हाट वाज द थर्ड लॉ? Of periodic time. Law of period. हाँ, so Kepler's third law was a law of periodic time, a law of period. और उसमें क्या था कि अगर ये सेमी मेजर एक्सिस को मैं ए बोल देता हूँ, सेमी मेजर एक्सिस को मैं ए बोल देता हूँ, तो द स्क्वायर orbital periodic time of the revolution of the planet around the sun is directly proportional to the cube of its semi-major axis. So that was the Kepler's third law. So these are the Kepler's law. After that, what we had discussed the Newton's law of gravity. तो इसको पहले हमने क्या किया था कि पहले हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने स्केलर फॉर्म में डिस्कस किया था, उसके बाद हमने वेक्टर फॉर्म भी डिस्कस किया था। तो स्केलर फॉर्म क्या था कि भैया फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑन ईच अदर बाय ईच अदर, the magnitude remaining the same, and the magnitude was given by g mama upon r square. So that was the scalar form. And what was the vector form? तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2 कैन बी रिटन एज अ g mama upon r square into r12 cap, where how will you find the r12? r12 कैसे मिलेगा भैया? तो बोले आपको करना क्या पड़ेगा कि भाई यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, बट r12 वेक्टर कैसे मिलेगा? तो अगर आपको m2 का पोजीशन वेक्टर पता है, m1 का पोजीशन वेक्टर पता है, तो दोनों के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट करो तो आपको r12 मिल जाएगा, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो आपको यूनिट वेक्टर r12 मिल जाएगा। एंड इफ यू पुट द वैल्यूज ऑफ द यूनिट वेक्टर r12 इन द प्रीवियस फार्मूला यू विल गेट द f12। एंड सिमिलरली f21 अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा भैया? मैग्नीट्यूड विल बी द सेम, g mama अपॉन r स्क्वायर इनटू यहाँ पे क्या आएगा r21 कैप। एंड हाउ विल यू फाइंड द r21 कैप? सो इट विल बी ऑब्वियसली टोटली अपोजिट टू द प्रीवियस वन। फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है भैया? Sir. Yes, sir. मिस्टर पार्टीवाला Yes, sir. समझ में आ रहा है सब कुछ? Yes, sir. Good. So that is the Newton's law of gravitation in the. Sir, F21 is equal to minus आएगा minus GM1 M1. हाँ, मतलब मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे R21 लिखा, तो अगर मैंने R21 लिखा है तो क्या मुझे नेगेटिव करने का जरूरत है? No, sir. ओके, इज इट अंडरस्टूड? या अगर आपको R12 लिखना है तो फिर आगे आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, इज इट ओके? अगर माइनस करना ही है तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा भैया? R12 cap. And that will becomes a minus f12. Is it okay? चलो अब जो टॉपिक था वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। The topic is a gravitational acceleration. Number one, on the surface of the earth. चलो, on the surface of the earth, what will be the acceleration भैया? G on the surface of the earth. G upon R एक चीज square. कंफर्म्ड है कि अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मास से डिवाइड करना पड़ेगा। बट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आपको शायद पता होगा इट इज अ G upon R RE square. square, and it is everywhere found to be a, it is everywhere 9.8. 9.8। बट अगर कोई प्रिसाइजली पूछता है, प्रिसाइजली
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज द मैक्सिमम ऑन द पोल, बिकॉज पोल पे रेडियस सबसे कम होता है, एंड इट इज अ मिनिमम, इट इज अ लीस्ट एट द इक्वेटर, बिकॉज इक्वेटर पे रेडियस सबसे ज्यादा होता है. बट दिस इज द फॉर्मूला ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सेकंड, वेरिएशन विद द हाइट. तो हाइट के साथ उसका वेरिएशन कैसे रहेगा? तो फ्रेंड्स, g एट सम हाइट, यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला इन दैट मैनर. अगर कोई भी हाइट है, कहीं पे भी अगर जाना है, तो जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच द होल स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एच, फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी एच. और अगर ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, g ऑन द अर्थ 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है भैया? H is less than R. और h is Much very lesser very than. much less than r e. Is that clear friends? चलो, one more thing, at the depth, अगर हम अंदर जाते हैं सरफेस के, अर्थ सरफेस के अंदर जाते हैं, तो कुछ डेप्थ में जाते हैं, एट द डेप्थ d. तो डेप्थ के लिए कोई फॉर्मूला बोलेगा भैया? G E is equal GE1 minus G D of D upon is RE. equal to G1 minus D by R. हाँ. सो ये जो फॉर्मूला है वो कोई भी डेप्थ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डी मस्ट बी वेरी मच स्मॉल, ये कोई भी डेप्थ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो भैया. And apart from that, we also had drawn the graph of G versus R. Am I right, friends? Yes, sir. किया था भैया? Yes. तो हमने ऐसा सीखा था कि सेंटर पे 0 होता है, उसके बाद सरफेस तक लीनियर रिलेशन होता है, वो डिस्टेंस के साथ सरफेस तक लीनियर रिलेशन होता है. फिर क्या होता है? सरफेस तक G प्रोपोर्शनल टू R रहता है. और उसके बाद क्या होता है भैया कि भाई G inverse से proportional मैक्सिमम to R. होता है सरफेस पे, वो मैक्सिमम हो जाता है. when the r becomes re, it is a maximum, and then after it is reduces with respect to 1 upon r square. तो यहाँ पे g proportional to r रहता है, और यहाँ पे g proportional to 1 upon r square रहता है. So that whole thing we had learned up till now from this chapter. तो ये पूरा एक मैंने आपको यहाँ पे मैंने पूरा Division. किया हुआ है, रिवीजन करा दिया है 2 लेक्चर का. अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? करण, कुछ पूछना है आपको? यस सर, वो सेकंड रो में लास्ट वाला आप वापस समझा सकते हो? सेकंड रो में लास्ट वाला F21. हाँ, तो F21 नहीं है, देखो ये 21 ये नंबर, इट इज नॉट अ नंबर गेम, इट इज अ F21, मतलब फोर्स ऑन 2 बाई 1. इट इज नॉट अ 21, इट इज अ फोर्स ऑन द पार्टिकल नंबर 2 बाई द पार्टिकल नंबर 1, ऑन बाई. ओके. एंड ओके. वो जो होता है ना, वो अगर जो ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे R21 के बदले, अगर आपको R21 के बदले अगर R12 करना है, तो ऑब्वियसली आपको माइनस करना पड़ेगा. तो लास्ट में आपको ये दिखा रहा है कि भैया ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो थर्ड लॉ है, उसका भी वहाँ पे वैलिडेट हो रहा है. ओके फ्रेंड्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यहाँ पे वैलिड है, बिकॉज F21 इज इक्वल्स टू माइनस F12. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. Yes, sir. So friends, these are the theory concepts till now we had discussed. अब कुछ न्यूमेरिकल मुझे करने हैं. आई होप कि आपको ये सब चीज समझ में आ गया होगा. ओके, यस और नो फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे अभी आ गया ये चैप्टर का नोट्स? Yes, sir. यस सर. ओके, वेरी गुड. चलो फ्रेंड्स, जस्ट कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 1. क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिख रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ओके. सो फ्रेंड्स, देखो क्या लिखा हुआ है.
let the speed of the planet at the perihelion P in the figure A be Vp and the sun distance is Rp. S से P का distance Rp है. We can relate this by the distance Rp, velocity Vp, and the correspondent quantity at the aphelion is Ra and Va. मतलब point A पे उसका जो sun से distance है वो आ रहे है, वहाँ पे velocity Va है. So will the planet take the equal time interval to traverse the both the distance? एक क्वेश्चन ये है. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये दोनों का रिलेशन मुझे निकालना है. मुझे VA RA VP RE के बीच में रिलेशन मुझे निकालना है. सो दो चीज यहाँ पे पूछा हुआ है. एक तो रिलेशन बिटवीन द VP एंड VA और दूसरा टाइम इंटरवल क्या लगेगा. ये दोनों B से G तक जाने में, B से G तक जाने में BAG एंड CPB. तो BAC होना चाहिए, G नहीं होना चाहिए, यहाँ पे C है. तो फ्रेंड्स विल आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन. पहले मुझे ये बताओ कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट व्हेन रिवॉल्विंग अराउंड द सन मस्ट बी. बोलो. constant. Must be constant. Very good. तो can I say angular momentum at the point P is equals to angular momentum at the point A. जब वो P पे होगा प्लैनेट, तब जो होगा एंगुलर मोमेंटम वही एंगुलर मोमेंटम A पे होगा. Yes. Yes, sir. ओके. मुझे ये बताओ कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है भैया. R cross P. R क्रॉस P. और उसके बाद हमने क्या प्रूव किया था. R क्रॉस P के बाद क्या था. इट इज अ मोमेंट ऑफ द मोमेंटम. मतलब क्या. मोमेंटम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मोमेंटम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. लीनियर मोमेंटम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब P पॉइंट पे लीनियर मोमेंटम क्या होगा. तो बोले MPVP होगा एंड इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखो सन से ये लीनियर मोमेंटम वहाँ पे टेंजेंशियली ड्रॉ किया मैंने PP, और उस सन से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही तो हमको दिया गया है कि RP है. और यहाँ पे पॉइंट A पे आप देख सकते हो कि मोमेंटम जो है ना वो हम क्या लिख सकते हैं. मास एट द पॉइंट A, velocity at the point A into the perpendicular distance, that is S to A. तो S से A का जो डिस्टेंस है वो हमको दिया हुआ है RA है. देखो प्लैनेट जब P से A पे पहुंचेगा तो उसका मास कोई चेंज नहीं होगा. तो मास तो दोनों साइड इक्वली रहेगा, वो प्लैनेट का ही मास रहेगा. तो मास इज गोइंग टू बी गेट कैंसल्ड. और मुझे रिलेशन लाना था VP एंड VA के बीच में. तो रिलेशन मिल गया. VP अपॉन VA इज इक्वल्स टू, आई शुड से RA अपॉन RP. चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया. Yes, sir. रिलेशन लाना था तो वो मिल गया. अब मुझे ये बताओ, करण कुछ पूछना है. Yes, sir. वो MP और MA अलग अलग है तो कट कैसे हुआ. अरे मैं बता रहा हूँ कि ये मास किसका मास होगा. किसका मास होगा ये. यहाँ पे जो फॉर्मूला में जो मास है वो मास किसका है, मेरा है या तेरा है, बताओ. फॉर मास किसका होगा, बोलो. डोंट बी शाय, बोलो बताओ मास किसका है. तो कोई भाई सन के आसपास कौन घूम रहा है, तो बोले प्लैनेट घूम रहा है. तो कभी कभी प्लैनेट P पे पहुंचेगा, कभी A पे पहुंचेगा, तो ये प्लैनेट का मास है. तो मैं ये बता रहा हूँ कि प्लैनेट सपोज के अर्थ है, तो अर्थ घूमते घूमते उसका मास चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा चेंज. Yes. नहीं, यस सर नहीं, मुझे ये बताओ कि प्लैनेट का मास चेंज होगा कि नहीं होगा. होगा सर. होगा. अर्थ का जो मास है, अर्थ का जो मास है ना, मास ऑफ द अर्थ इज अ फिक्स्ड. इट इज अ, इफ यू डोंट नो, आई विल टेल यू, इट इज अ फिक्स्ड वन. इट इज अ 2 into 10 raised to 24, 6 into 10 raised to 24 kg.
तो ये यस फिक्स सर। होता है, प्लैनेट का मास फिक्स्ड होता है, चाहे वो पोजीशन पी पे आए या चाहे पोजीशन ए पे आए, तो मास तो फिक्स्ड ही रहता है। तो इसी के वजह से मैंने उसको दोनों साइड से कैंसिल किया, बिकॉज वो सेम ही रहेगा। इज दैट क्लियर टू यू? ओके सर। यस इज इट अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये है भैया, दूसरा क्वेश्चन ये है कि बी ए जी, मतलब बी ए जी पाथ है ना, वो ये पाथ है बी ए जी, ये वाला पाथ है। तो प्लानेट बी से ए पे गया, ए से सी पे गया, तो इतना पाथ उसने ट्रैवल किया। तो कितना एरिया उसने व्हेन इट इज रीचिंग फ्रॉम बी ए जी, सो हाउ मच एरिया विल स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट। तो इतना एरिया वो स्वेप्ट करेगा। इज दैट क्लियर? व्हेन इट इज ट्रैवल फ्रॉम बी टू ए टू सी। अब दूसरा केस ऐसा है कि फिर दूसरा वाला कौन सा है, तो बोले सी पी बी। अब सी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है। तो व्हेन इट इज ट्रैवल फ्रॉम सी पी बी, हाउ मच एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट? दिस मच। तो मुझे ये पता है कि इक्वल एरिया इक्वल टाइम में ट्रैवल करता है। यहाँ पे जो प्लैनेट होता है ना, वो क्या करता है कि भाई प्लैनेट जो होता है वो इक्वल, एनी प्लैनेट swept equal area in an equal interval of time। मतलब अगर एरिया इक्वल है तो टाइम इक्वल रहेगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, कौन सा वाला एरिया ज्यादा है? BAC। तो एरिया फॉर द BAC is larger than the area when it travel from CPB। तो अगर एरिया ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। BAC पे जाने का जो टाइम है वो देखो, इक्वल एरिया इक्वल टाइम में ट्रैवल हो रहा है, बट अगर एरिया ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा ना। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। तो विल द प्लैनेट टेक्स इक्वल टाइम? तो नो। In which case the time interval will be larger। तो when it is moving from B to A to C, तो B to A to C जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये मैंने केपलर सेकंड लॉ से प्रूव कर दिया, केपलर सेकंड। अदरवाइज लॉजिकली भी ये करेक्ट है, सिंपल सा लॉजिक है। फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि सन यहाँ पे है, बराबर है, सन यहाँ पे है, तो ये BAC वाला जो पाथ है, तो वो सन से दूर का पाथ है या नजदीक का? प्लैनेट का सन से दूर का पाथ है कि नजदीक का पाथ है? दूर का। दूर का। तो जब वो प्लैनेट दूर होगा तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? कम लगे। कम। लगेगा। तो उसका स्पीड ज्यादा होगा या कम होगा? कम। कम। कम होगा। तो टाइम इंटरवल? कम। ज्यादा। अरे ज्यादा। स्पीड कम है तो टाइम इंटरवल ज्यादा ज्यादा लगेगा। तो वही तो है, देखो वही तो है कि BAC पाथ में उसका टाइम इंटरवल ज्यादा है। तो कोई भी हिसाब से आप लॉजिकली भी सोच सकते हो, केपलर्स सेकंड लॉ से भी सोच सकते हो। क्या ये आपको पता चला फ्रेंड्स? तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था कि रिलेट RPVP एंड RAVA, तो रिलेशन करना था दूसरा क्वेश्चन टाइम इंटरवल का था। तो दोनों क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सर। चलो फ्रेंड्स, कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 के क्वेश्चंस आप दिख रहे हो, आपको दिख रहा है क्या? यस सर। आपको दिख रहा है फ्रेंड्स? यस और नो? यस सर। देखो चीज़ ऐसी है कि फिजिक्स को आप है ना ऐसे मत पढ़ो कि मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, ये करना पड़ेगा, ऐसे मत पढ़ो। उसको है ना आप इंटरेस्ट से पढ़ो, एक इंटरेस्ट डेवलप करो कि भाई यहाँ पे क्या दिया गया है और हमको क्या फाइंड करना है। तो क्या हम उसको फाइंड कर पाएंगे? क्या हमारे पास ऐसा मेंटल अप्रोच है कि हम उसको सॉल्व कर पाए? ऐसे सोचो तो मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वी आर हैविंग अ 3 masses of m kg, each are fixed at the vertices of the equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ना, उसके हर एक वर्टाइसिस पे मास m है।
What is the force acting on the mass 2m placed on the centroid G on the triangle? तो ट्राइंगल के सेंट्रोइड पे यहाँ पे 2m मास है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो मुझे पहले ये बताओ, देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन में ऐसा है कि ट्राइंगल के हर एक वर्टाइसिस पे मास m है और उसके सेंट्रोइड पे मास 2m है, तो 2m मास पे कितना फोर्स लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो मुझे पहले तो ये बताओ कि हाउ मेनी फोर्स विल एक्सपीरियंस्ड बाय द 2m मास, ये 2m मास है उसके द्वारा कितने फोर्सेस उसको उसके ऊपर लगेंगे, मुझे ये बताओ पहले। 2 देखो 2m मास के आसपास कितने और कितने मासिस है? 3 ये 2m जो है ना वो सेंटर पे है और वर्टाइसिस पे m है, तो मुझे ये बताओ कि कितने फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट हो गए 2m मास के ऊपर। तो ये 2 मास के ऊपर कौन कौन फोर्स प्रोड्यूस करेगा? 3m मतलब तो यहाँ पे ए बी एंड सी के ऊपर जितने भी मासिस है, मतलब सिस्टम में 2m के अलावा कितने मास है, वो जितने भी है वो फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फोर्स ऑन द जी बाय द ए, फोर्स ऑन द जी बाय बी एंड फोर्स ऑन द जी बाय सी, ये 3 फोर्स इसके जी के ऊपर लगेंगे। तो ये तीनों फोर्स को अगर आप वेक्टर फॉर्म में फाइंड कर लो, और अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा भैया? ये तीनों का क्या करना पड़ेगा भैया? अरे बोल भी, ऐसा तो वेक्टर सम करना पड़ेगा, सो दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो अट्रैक्टिव है, तो ये जो ए बी सी वर्टाइसिस पे जितने भी मास है वो क्या करने का ट्राई करेगा? वो सेंटर के 2m मास को क्या करने का ट्राई करेगा? रिपेल करेगा या अट्रैक्टिव करेगा, अट्रैक्ट करेगा? बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो अट्रैक्टिव है, तो वर्टेसिस पे जो ए बी एंड सी जो वाले ए बी एंड सी पे जो भी मास है वो क्या करने का ट्राई करेगा? ये सेंट्रोइड को अट्रैक्ट अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। तो कैन आई से द डायरेक्शन ऑफ ए बी विल बी दिस वन, ये एफ जी ए का डायरेक्शन है, जी के ऊपर ए के द्वारा। अब ये जी के ऊपर बी के द्वारा या इस डायरेक्शन में लगेगा और जी के ऊपर सी के द्वारा इस डायरेक्शन में लगेगा। सोचो ये तीनों जो फोर्सेस है ना वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो मतलब तीनों डायरेक्शन से इक्वली वो खींच रहा है, मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो आपको लॉजिकली क्या लग रहा है कि ऐसे 3 फोर्स है इक्वली लग रहे हैं, तो क्या व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट फोर्स? आपको क्या लग रहा है उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होना चाहिए? तीनों साइड से इक्वल फोर्स से उसको हम स्ट्रेच करने का ट्राई करते हैं ये 2m मास को, तो क्या वो कौन से तरफ जाएगा, या फिर उसके ऊपर फोर्स क्या लाएगा? सर 0 उधर ही रहेगा। तो लग रहा है ऐसा कि वो तो वहां के वहीं पर ही रहना चाहिए, वही रहना। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। तो वो चीज़ हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, वो चीज़ हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। बट क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये तीनों के द्वारा वेदर द फोर्स ऑन जी बाई ए, वेदर द फोर्स ऑन जी बाई बी एंड वेदर द फोर्स ऑन जी बाई सी विल बी द इक्वल हाउ मच इट इज जी m1 तो m हो जाएगा, m2 2m हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस दिया हुआ है कि 1 मीटर है, ये सेंट्रोइड से हर एक वर्टेक्सिस का डिस्टेंस 1 है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जी मामा अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो m1 इज इक्वल्स टू m, सब में m है, m2 इज इक्वल्स टू 2m अपॉन 1 स्क्वायर। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस देखो आपको पता है कि वेक्टर फाइंड करने के 2 रास्ते हैं। मिस्टर पार्टीवाला प्लीज आप ये सुन लेना, अगर कोई भी वेक्टर आपको फाइंड करना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक ऐसा है कि आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वेक्टर मिल जाएगा, नंबर 1। और दूसरा रास्ता ये है कि आप है ना एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल सबटेंड हो रहा है वो फाइंड कर लो, और एंगल मिलने के बाद आप कर सकते हो उसका कंपोनेंट ए कोस थीटा आई, ए साइन थीटा जे कैप, और ये दोनों कंपोनेंट प्लस और माइनस आपको देखना है कि प्लस है या माइनस है। तो ये कौन सा रास्ता कब आप वैलिडेट करोगे? तो अगर कोई वेक्टर टोटली एक्स या वाई डायरेक्शन में है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला, ये वाला फर्स्ट वाला। अगर कोई वेक्टर एंगल सबटेंड कर रहा है, इफ एनी वेक्टर
एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, अगर वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है तो आपको ये मेथड यूज करना है, सेकंड वन। तो मुझे देख के बताओ फिगर में कि एफ जी ए है, जो जी के ऊपर ए के द्वारा, वो जो है वो टोटली मैंने है ना इसको वाई डायरेक्शन कंसिडर किया, इसको मैंने एक्स डायरेक्शन कंसिडर किया हुआ है और इसको वाई डायरेक्शन कंसिडर किया हुआ है इसको। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो एफ जी ए है ना वो टोटली वाई डायरेक्शन में है? यस सर। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो इसका कितना है, जी मम्मा अपॉन 1 स्क्वायर, है ना। यूनिट वेक्टर क्या आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, वो टोटली वाई डायरेक्शन में है। सो व्हाट शुड बी द यूनिट वेक्टर? जे जे कैप। चलो ये बात समझ में आया। यस सर। चलो अब ये जीबी की बात करते हैं। तो फोर्स ऑन जी बाई बी, तो ये इस डायरेक्शन में है, तो उसके दो कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, एक ऐसे जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसे जाएगा नीचे की तरफ। तो दो कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं और मुझे बताओ कि ये एक्स कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में गया, नेगेटिव या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में गया? नेगेटिव। वाई कंपोनेंट कहाँ पे जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में? नेगेटिव आई। नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो उसके दोनों कंपोनेंट नेगेटिव नेगेटिव है। तो आपको करना क्या है, ए कोस थीटा, हाँ एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है उसका, एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30। वो 30 क्यों हुआ, वो 30 इसलिए हुआ बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे 60 होगा, 60 का आधा 30, और जो यहाँ पे बनेगा वही यहाँ पे बनेगा जेड एंगल। यस। तो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई दिस एंगल इज 30 डिग्री। यस सर। तो अब हो जाएगा ए कोस 30 आई, ए साइन 30 गई, बट ए के बदले मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या है, जी मामा अपॉन 1 स्क्वायर कोस 30 आई जी मामा अपॉन 1 स्क्वायर साइन 30 गई, बट बोथ द कंपोनेंट नेगेटिव। नेगेटिव। चलो आया बात समझ में? यस। अब किसकी बात करेंगे, अब ये जीसी की बात करेंगे। तो उसका एक्स कंपोनेंट देखो, एक्स कंपोनेंट कहाँ पे जा रहा है भैया, कहाँ पे गया, कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स के नेगेटिव एक्स में पॉजिटिव गया, एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव। और उसका वाई कंपोनेंट कहाँ पे गया, माइनस, नेगेटिव। तो मतलब एक्स नेगेटिव वाई कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन, है, वाई नेगेटिव है, एंड एंगल कितना सबटेंड हो रहा है भैया, 30 डिग्री। डिग्री। तो वापस से जी मामा अपॉन 1 स्क्वायर कोस 30 आई जी मामा अपॉन 1 स्क्वायर साइन 30 गई, बट प्लस, पहले में प्लस, बीजे में माइनस। दूसरे में माइनस। चलो ये बात समझ में आया, आया बात समझ में? यस सर। तो अब उसको एडिशन करो, वेक्टर एडिशन करो। तो वेक्टर एडिशन करोगे ना तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बाकी वो सेम ही है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो अब बचेगा क्या, तो बचेगा ये जी मामा अपॉन 1 स्क्वायर जे के बचेगा, और ये दोनों का एडिशन करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी मामा माइनस 2 जी मामा माइनस 2 जी मामा अपॉन 1 स्क्वायर इंटू साइन 30 जेकब। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2. 1/2. 1/2, 2 गेट कैंसल्ड। तो फिर फाइनली व्हाट शुड बी द आंसर फ्रेंड्स? तो Zero. टर्म सेम ही हो गया ना, दोनों टर्म सेम ही हो गया, तो क्या आंसर आएगा? 0. तो क्या ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया? Yes sir. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्या ये न्यूमेरिकल समझ में आया? अब दूसरा भी क्वेश्चन है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फोर्स इफ द मास ऑफ द वर्टेक्स ए इज डबल्ड। तो अब ए का जो मास है ना वो डबल कर दिया है। तो अभी मैं बी आपको ए का काम खत्म हो गया, अब बी में आपको सिखा रहा हूँ। अब क्या किया, अब ए का मास डबल कर दिया, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, ये जी ए के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2m इंटू 2m, 2m इंटू 2m रहेगा, और जीबी जीसी तो सेम टू सेम ही रहेगा, जीबी एंड जीसी तो सेम टू सेम ही रहेगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। तो फिर फाइनली आंसर में क्या आएगा कि ये दोनों तो कैंसिल होने वाला ही है, और यहाँ पे m के बदले क्या आ जाएगा, 2.
आ जाएगा। तो फिर अब थोड़ा आंसर में चेंज आएगा, जीरो नहीं होगा, अब जीरो नहीं होगा, अब वो जीरो नहीं होगा भैया, तो कितना होगा? तो चलो लिखते हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म रहेगा ना वो 2 टू 4 हो जाएगा। तो 4G मामा, अभी जो मामा होती है ना वो 4G होती है, तो 4G मामा अपॉन 1 स्क्वायर जे कैप माइनस 2G मामा अपॉन 1 स्क्वायर जे कैप। तो क्या बचेगा फ्रेंड्स? 4GM स्क्वायर माइनस 2GM स्क्वायर, तो क्या बचेगा? 2GM square. 2g square. 2GM स्क्वायर जे कैप। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द सेकंड केस। आया बात समझ में भैया? यस और नो? तो बी के लिए ये आंसर आएगा, और क्वेश्चन नंबर ए के लिए, क्वेश्चन ए के लिए कौन सा आंसर आएगा? जीरो आएगा। तो क्या ये पूरा न्यूमेरिकल आपको समझ में आया? Yes, sir. फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं, 12th स्टैंडर्ड का एक न्यूमेरिकल आपने खत्म कर दिया, तो 12th स्टैंडर्ड के अंदर ये सेम टू सेम न्यूमेरिकल है, बट चेंज ये है कि वहां पे मास के बदले चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है मास के बदले। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो जी मामा अपॉन आर स्क्वायर है, बट इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, अदरवाइज द मेथड विल बी द सेम टू सेम। क्या ये चीज आपको पता चला? Yes, sir. लेट्स कम टू द थर्ड न्यूमेरिकल फ्रेंड्स। अब थर्ड कर पाएंगे क्या हम? सेकंड तो खत्म हो गया, थर्ड के बारे में देखते। तो पोटेंशियल फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टॉपिक ही नहीं, अभी टॉपिक ही नहीं हुआ है, तो अभी जो न्यूमेरिकल्स है उसका रिगार्डिंग टॉपिक ही नहीं हमने डिस्कस किया है। तो अब हम कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकंड मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बट उसके अंदर सेकंड का ये जो फोर्थ वन है ना, फोर्थ वन वो वापस से पोटेंशियल एनर्जी का है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का रिगार्डिंग क्वेश्चन अभी मत करो आप, तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड करना है, आपको रीड करना है, एक बार देखना है, बट क्वेश्चन नंबर 2 का जो डी वाला है ना, डी वाला वो मत करना, अदरवाइज पूरा फर्स्ट एंड सेकंड खुद कर लो, देख लो एक बार सॉल्यूशन, पता करो कि पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। तो फर्स्ट एंड सेकंड में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, डी वाला मत करना अभी, उसका पोटेंशियल एनर्जी का बाकी है। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। आप थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो, क्या ये एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको दिख रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, क्या लिखा है देखो। Suppose there existed a planet that went around the sun twice as fast as Earth। मतलब कोई प्लानट का जो रिवॉल्यूशन का स्पीड है ना, वो हमारे अर्थ के रिवॉल्यूशन का जो स्पीड है सन के आसपास उससे डबल है। तो ओमेगा ऑफ अ प्लानट इज अ ट्वाइस देन द ओमेगा फॉर द अर्थ। चलो ये चीज समझ में आया आपको? पहले क्वेश्चन में ये लिखा था सेंटेंस के, तो ये सेंटेंस समझ में आया फ्रेंड्स आपको? प्लानट का रिवॉल्यूशन का जो स्पीड है, मतलब एंगुलर स्पीड है रोटेशन का, वो अर्थ से डबल है। चलो क्या ये चीज समझ में आया? तो क्वेश्चन ऐसा है, देन व्हाट वुड बी द ऑर्बिटल साइज? ऑर्बिटल साइज का मतलब रेडियस उसका कितना होगा? तो प्लानट का रेडियस कितना होगा एज कंपेयर टू द अर्थ? चलो, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन में के बारे में, मैं सॉल्यूशन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आया अभी तक? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन सिंपल सा ऐसा है कि प्लैनेट जो है ना वो फास्ट रिवॉल्व हो रहा है अर्थ से, उसका रिवॉल्यूशन का स्पीड है ना, एंगुलर स्पीड, वो अर्थ से डबल है। तो उसका ऑर्बिटल लेंथ मतलब उसका रेडियस कितना होगा विथ रिस्पेक्ट एज कंपेयर टू द अर्थ? तो फ्रेंड्स हमें Half. पता है अकॉर्डिंग टू द केपलर, नहीं हाफ नहीं कह सकते हैं भैया, गलत है। अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ आपको ये पता होगा कि पीरियोडिक टाइम टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भैया? A cube. ए क्यूब के बदले में उसका रेडियस है ना वो आर है, तो आर क्यूब लिख सकता हूँ, चलेगा फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. तो टी प्लानट अपॉन टी अर्थ इज इक्वल टू, कैन आई से आर प्लानट
अपॉन आर अर्थ का क्यूब, Yes. इसके लेफ्ट हैंड साइड इसका स्क्वायर, वो मतलब वो जो है ना, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा दोनों इक्वेशन में, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। जैसे टी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर पी क्यूब एंड टी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर ई क्यूब, और फिर इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप मैंने कट कर दिया, चलेगा ना फ्रेंड्स? इज इट ओके नाउ? चलेगा? Yes. बट क्या फ्रेंड्स आप ये जानते हो कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है? Yes. Yes, sir. क्या इसका मतलब ऐसा होगा कि t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा होगा? Yes. Yes, sir. तो फिर ये Yes. t एंड ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, t एंड ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो फिर टीपी अपॉन टी क्या होगा? टीपी अपॉन टी क्या होगा? Omega P upon omega Omega. P. होगा Omega E upon omega. हाँ, उल्टा हो जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो ये Yes. t अपॉन टी ई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा पी अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा ई, तो 2 पाई गेट कैंसल, तो ऊपर जाएगा ओमेगा ई बाई ओमेगा पी। आया बात समझ में भैया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इज इक्वल्स टू आर पी अपॉन आर ई का क्यूब। फ्रेंड्स हमको ये दिया गया है कि ओमेगा पी जो है ना वो डबल है ओमेगा ई से, तो यहाँ पे ये ओमेगा पी के बदले हम क्या लिख सकते हैं भैया? 2 2 Omega E. omega E. ये सफर ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा क्या ये? Yes, sir. 1/2 का स्क्वायर तो Yes, sir. अब ये आर पी अपॉन आर ई का क्यूब। अब मैं ना दोनों साइड क्यूब रूट लेता हूँ, दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे, तो यहाँ पे 1 का तो क्यूब रूट, 1 का तो जो क्यूब रूट होता है ना वो तो 1 ही होता है, 1 का क्यूब रूट, बट डिनोमिनेटर में हो जाता है 4 का क्यूब रूट। अब ये क्यूब रूट कैसे निकालना है? तो फ्रेंड्स मैं है ना आपको कैलकुलेटर के द्वारा क्यूब रूट कैसे निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, 11th एंड 12th के अंदर 2-3 जगह पे, 3-4 जगह पे आपको क्यूब रूट निकालने की जरूरत होगी। गुजरात बोर्ड वालों को कैलकुलेटर अलाउड है, गुजरात बोर्ड वालों को एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउड है। सीबीएसई वालों को क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछेंगे कि कैलकुलेटर का यूज करने की जरूरत ना पड़े, या फिर दिया होगा कुछ ना कुछ। ओके, तो ये 4 का क्यूब रूट कैलकुलेटर से कैसे निकालना है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, अगर ये मेथड आपको नहीं पता है तो आपको लॉग एंड एंटी लॉग लेके आंसर लाना पड़ेगा, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो एक बार सीख लो मैं जो सिखा रहा हूँ। चलो, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो हाथ में कैलकुलेटर पकड़ लो, Yes, sir. ले लिया. फटाफट कैलकुलेटर ले लो हाथ में। ले लिया. ले लिया? मोबाइल कैलकुलेटर Yes, sir. या मोबाइल का कैलकुलेटर नहीं चलेगा? बोलो. Yes, sir. ओके, अब एक काम करो, आपको क्या करना है, 4 का क्यूब रूट निकालना है ना, तो एक काम करो, पहले 4 को कैलकुलेटर के अंदर 4 को प्रेस करो। प्रेस किया 4 को? Yes, sir. Yes, फिर है sir. ना 2 टाइम्स रूट का साइन प्रेस करो, 2 टाइम्स रूट का साइन प्रेस करो। 1.41 आ गया. नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ अभी मैं खत्म तो करने दो भैया। तो 2 टाइम्स आपको रूट का साइन प्रेस करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रेस करो, फिर 4 टाइम रूट का साइन प्लेस करो, 4 टाइम्स, फिर वापस से मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 8 टाइम्स रूट का साइन प्लेस करो, 8 टाइम्स, फिर वापस से एक बार क्रॉस करो, क्रॉस का साइन, फिर वापस से 2 टाइम्स रूट का साइन निकालो। तो अभी जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। तो क्या मिल रहा है देखो भैया, 1.096. 1.096. 1.096, फिर क्या आता है? 1.0968. तो 698 है ना, तो उसको 1.069
क्या आ रहा है 1.69 1.096 96 फिर 8। 8 है बाद में। हाँ तो बाद में 8 है ना, तो इसको 1.097 कर दो। तो 1.1 लास्ट में थर्ड पॉइंट पे एक डिजिट ऐड कर दो, 1.097 कर दो। ओके फ्रेंड्स, यस Yes. सर। तो ये आपका क्यूब रूट निकल गया 4 का, तो 1.097। अब 1 डिवाइड बाई 1.097 करो तो फ्रेंड्स, जीरो 0.911। क्या ये आंसर आ रहा है भैया? आई थिंक आपने गलत किया है। एक बार फिर से हम करेंगे, एक बार फिर से करेंगे, कुछ तो गड़बड़ किया है आपने। चलो मुझे बताओ फ्रेंड्स, एक बार फिर से फॉलो। चलो चलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से कैलकुलेटर में 4 को प्रेस करो। 4 प्रेस किया, यस सर। फिर 2 टाइम्स रूट को प्रेस करो, यस सर। फिर वाप क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन, यस सर। फिर 4 टाइम्स रूट को प्रेस करो, यस सर। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, यस सर। फिर 8 टाइम्स आप रूट को प्रेस करो, यस सर। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, यस सर। फिर 2 टाइम आप प्रेस करो रूट को। वही आ रहा 1.096 आ रही है, ये यही आ रहा है। सर नहीं सर, वैसे नहीं होता, 12481 होता है। आप ये 2482 करवा रहे हो, 12481 होता है। नहीं, ये बराबर ही है, 2 4 नहीं 8 सर, ही होता है। और फिर सर इक्वल्स टू करो तो उससे इक्वल्स आंसर टू, आ जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, उससे आंसर आ वो भी मेथड हाँ है। सर, इक्वल्स टू क्या, तो 1.58 आ रहा है। हाँ, यस फिर सर। इक्वल्स टू करना रहेगा ना, इक्वल्स टू करना पड़ेगा ना आपको, हम्म। लास्ट में आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या मिला आपको? 1.587। 1.587। 1.587 का मतलब 588, लास्ट में एक डिजिट आपको ऐड करना है। ओके, यस सर। तो ये भी मेथड है, ये करना है आपको। ओके, फिर लास्ट में इक्वल्स टू प्रेस करना है आपको। तो फ्रेंड्स क्या आ रहेगा फिर देखो तो, 1 डिवाइड बाई 1.588, 0.629। 6 3 post। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। ये दूसरा मेथड भी कर सकते हो आप, वो भी बराबर है कि पहले एक बार रूट प्रेस करो, फिर 2 बार रूट प्रेस करो, फिर 4 बार रूट प्रेस करो, फिर 8 बार रूट प्रेस करो, और फिर लास्ट में एक बार रूट प्रेस करो। तो ये भी कर सकते हो आप, दोनों मेथड वैलिड है, दोनों हिसाब से आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अगर यस सर। ये प्रैक्टिस करना है ना, तो एक काम करो, आपको जो जिसका पता है ना, जिसका पता है उसका ही क्यूब निकालना स्टार्ट करो। जैसे आपको पता है कि 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3। हाँ, 27 का क्यूब रूट 3 होता है। तो एक बार 27 लेके करो सॉल्व, और क्या 3 आ रहा है वो देख लो, 2.999 आएगा तो देर वैलिड है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो मेथड है वो आप सीखो। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir, 2.9। आया बात समझ में फ्रेंड्स? यस सर। ओके, okay, let's come to the next numerical. देखो क्वेश्चन क्या है कि one of the satellite of a Jupiter has an orbital period 1.769 days, and the radius of orbit is a 4.22 cross 10⁸ meter. Show that the mass of a Jupiter is about 1000 than that of sun. एंड यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सन का मास भी दिया होगा, यहाँ पे देना रह गया है
where mass of the sun is given as a 2 into 10 raised to 30 kg, ये दिया हुआ है। और मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि मास ऑफ जुपिटर जो है ना वो सन के मास से 1000 टाइम कम है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। सो दैट इज द थिंग आई वांट टू प्रूव, इसको मुझे प्रूव करना है। देखो यहाँ पे क्या है कि वन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर हैज़ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ एक कोई जुपिटर के आसपास कोई सैटेलाइट है, उसका पीरियोडिक टाइम हमको दिया हुआ है और उसका रिवोल्यूशन का रेडियस भी दिया हुआ है। देखो फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ अ सैटेलाइट around a planet Jupiter, around a Jupiter। देखो यहाँ पे सर्कुलर मोशन है। तो फ्रेंड्स, whenever there is a word circular motion or revolution around the sun, around the planet, तो फ्रेंड्स कोई ना कोई फोर्स तो ऐसा होगा ही कि ये सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। For the revolution of the satellite on the Jupiter, which force will providing the centripetal force? Gravitational force. Exactly। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा जो towards the center एक्ट करेगा? तो I can say a gravitational force providing a necessary centripetal force। Is that clear? Yes, sir. तो रिक्वायर्ड, देखो ये जो रिवॉल्व हो रहा है वो प्लैनेट है, सॉरी रिवॉल्व हो रहा है वो सैटेलाइट है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना mv²/r में, उसमें जो रिवॉल्व हो रहा है ना उसका मास लेने का है। याद रखना फ्रेंड्स, जो रिवॉल्यूशन कर रहा है उसका मास लेने का है। तो mv² इज इक्वल्स टू जी मामा जी मास ऑफ जुपिटर इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r²। तो भैया एक तो r कैंसिल हो जाएगा, एक r तो कैंसिल हो जाएगा। चलो यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. तो बचे, हाँ ये m भी कैंसिल हो जाएगा, सैटेलाइट का मास भी कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी बचेगा वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू gmg अपॉन r। क्या ये पता चला फ्रेंड्स? Yes, sir. अब क्या होता है, आपको ये पता होगा कि v इक्वल्स टू r ओमेगा। सर्कुलर मोशन के लिए हमने ये 4th चैप्टर में डिस्कस किया था। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ओमेगा का वैल्यू आपको ये भी पता है कि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2π/t। 2π/t। तो ये जो ऊपर का जो फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर वेलोसिटी के बदले में क्या लिख सकता हूँ? 2πr/t लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो v² मतलब 2πr का स्क्वायर, तो 4π² r² अपॉन t² इज इक्वल्स टू g मास ऑफ जुपिटर अपॉन r। तो मुझे है ना मास ऑफ जुपिटर फाइंड करना है। तो बचेगा क्या राइट साइड? 4π² रेडियस का क्यूब अपॉन gt²। चलो अब क्या राइट साइड जितने भी क्वांटिटीज है वो क्या नोन है हमारे लिए? यस, वी ऑल द क्वांटिटी आर नोन टू अस। ये π² मतलब 3.14 का स्क्वायर ऑलमोस्ट 10 होता है। 3.14 का अगर स्क्वायर करोगे ना आप तो ऑलमोस्ट 10 हो जाएगा। रेडियस का क्यूब तो 4.22 इंटू 10⁸ का क्यूब अपॉन जी का वैल्यू 6.62 6.67 10⁻⁻11। पीरियोडिक टाइम का स्क्वायर, पीरियोडिक टाइम कितना है? 1.769 डेज। तो 1.769 डेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में। तो डे मतलब कितने सेकंड्स? डे मतलब दिस मच इंटू 24 आवर, 24 आवर इंटू 3600 सेकेंड्स। 1 आवर इक्वल टू 3600। तो ये पूरा मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, उसका वापस से स्क्वायर करने का है। सो कैलकुलेशन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट वो तो कैलकुलेटर में आपको स्विचेस ही आपको प्रेस करना है। मतलब शांति से आपको ये 10 के पावर को देखना है
तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना, सो व्हाट यू विल गेट, यू नो, you will get 2 into 10 raised to 27 kg. So this much is the mass of the Jupiter. अब mass of a Jupiter upon mass of Sun करोगे ना, तो 2 into 10 raised to 27 upon 2 into 10 raised to 30 is already mass of the Sun is given to you. तो क्या बचा भाई, नीचे बचेगा 1000, बाकी सब कैंसल. तो it is very well proved that the mass of Jupiter is 1000 part of a mass of Sun. आया बात समझ में फ्रेंड्स? यस सर. चीज समझ में आ रही है फ्रेंड्स? यस सर. Yes, sir. Very good. So friends, let's move further. I hope you are enjoying these numericals. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. तो जुपिटर का मास हमने फाइंड किया, सब कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फिर रेशियो निकाला तो आ गया. चलो वापस से क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ. क्या क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको दिख रहा है? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Let's assume that our galaxy consists of the 2.5 10 raised to 11 stars, each of one solar mass. मतलब हमारे गैलेक्सी का मास कितना होगा भैया, बताओ. व्हाट शुड बी द मास ऑफ आवर होल गैलेक्सी? मास ऑफ आवर होल मिल्की वे, होल गैलेक्सी is equals to how much stars are there? 2.5 10 raised to 11 star, and each star consists of mass of sun. So total mass of the whole galaxy equals to this much times of the mass of sun. Is that clear to you friends? यस. हाँ तो बोल दो. एंड सन का मास तो आपको पता ही है, क्या है सन का मास? आप याद रख दो, ये बार बार आ रहा है कि 2 into 10 raised to 30. तो हमारे पूरे गैलेक्सी का जो मास है वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 5 into 10 raised to 41 kg. तो ये अब पूछा क्या है कि ये जो हमारा पूरा जो गैलेक्सी है, ये हमारा पूरा गैलेक्सी है मिल्की वे, और उससे 50,000 लाइट ईयर्स डिस्टेंस पे कोई स्टार है. वो 50,000 लाइट ईयर गैलेक्टिक सेंटर से, गैलेक्टिक सेंटर मतलब ये गैलेक्सी का जो सेंटर है, वो सेंटर से 50,000 लाइट ईयर डिस्टेंस पे कोई स्टार रिवॉल्व कर रहा है गैलेक्सी के आसपास. तो वापस जब भैया रिवॉल्यूशन आया, वापस से रिवॉल्यूशन आया, तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडिंग बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या लिखूं भैया, बताओ भैया? बट मास किसका लेना है, गैलेक्सी का लेना है कि जो रिवॉल्व हो रहा है उसका लेना है? इवॉल्व हो रहा है उसका. उसका लेना है भैया. इज इक्वल्स टू जी मामा अपॉन आर स्क्वायर. आया बात समझ में? Yes, sir. ये गैलेक्सी का जो डायामीटर है ना, वो कोई काम का नहीं है हमको. तो वो जो रिवॉल्यूशन का जो रेडियस होता है ना, गैलेक्सी का डायामीटर का कोई काम नहीं, इसका कोई काम ही नहीं है. रिवॉल्यूशन का जो रेडियस है वो हमको देखना है. अभी जो आगे के क्वेश्चन में किया था वही स्टेप वापस हम डिस्कस कर रहे हैं. तो वापस उसी स्टेप पे जा रहा है. वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर. अब फ्रेंड्स ये वी के बदले याद है 2 पाई आर बाई टी 2 pi, yes. इज इक्वल टू, हमने प्रूव कर दिया था 2 पाई आर बाई टी. यस और नो फ्रेंड्स? Yes, sir. तो फ्रेंड्स प्लेस करो यहाँ पे वैल्यूज. तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर. तो अभी मुझे करना क्या है, तो मुझे ये करना है कि फ्रॉम द टेक टू कंप्लीट. अच्छा क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल इट टेक. Time. विल इट टेक मतलब क्या फाइंड करना है? Time. टाइम फाइंड करना है भैया. और जीवन में वही तो नहीं है हमारे पास. तो भैया 4 पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 हो जाएगा,
और आर क्यूब रेडियस हमको दिया हुआ है 50,000 लाइट ईयर्स एंड 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू हाउ मच फ्रेंड्स? किसी को याद है? 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू हाउ मच टाइम? मुझे याद नहीं है भैया, मैं भूल गया हूँ। 9.46 10 to 16 या 15 क्या था? 15 हाँ 19 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू हाउ मच? याद है किसी को? 9.46 10 to 17 18 16 मुझे याद नहीं आ रहा है। 10 to 15. 9.46 into 10 raised to 9. 15 years. 15 years. 15 years. 15 Yes, sir. meter. Okay. So 9.46 10 raised to 15 का क्यूब करना पड़ेगा भैया आपको अपॉन जी का वैल्यू 6.67 10 raised to -11 mass of the whole galaxy we already had found the 5 into 10 raised to 41। अभी इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ आंसर आएगा, फिर वापस से उसका क्या करना है आपको? ये तो टी स्क्वायर मिला, तो लास्ट में क्या करना? रूट कर. उसका वापस से रूट निकालना पड़ेगा। रूट तो निकल सकता है कैलकुलेटर से, पर याद रखना फ्रेंड्स, रूट निकालने से पहले ये जो राइट्स है ना, वो 10 का इवन पावर लेके रूट निकालना, बिकॉज 10 के ऑड पावर का रूट नहीं निकलता, 10 के इवन पावर लेके रूट निकालना। ओके, कुछ सिंप्लीफाई करके 10 का इवन पावर लिखना और उसके बाद रूट निकालना। तो ये आपको स्टार का पीरियोडिक टाइम मिलेगा अराउंड आवर गैलेक्सी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. थोड़ा कैलकुलेशन गंदा है, बट गंदा है पर करना पड़ेगा. धंधा है ये, करेक्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. ये 10 to 19 है क्या? 19 होता है क्या? आई थिंक 15 होना चाहिए यहाँ पे। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे। 9.40 10 to 15 होना चाहिए 1 लाइट ईयर। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है ऐसा लग रहा है मुझे। इट शुड बी अ 15। ओके, इट मे बी अ 19, आई डोंट नो एग्जैक्टली। देखना है, देख लेते चलो एक बार, सो कंफ्यूजन इज ओवर। जस्ट लेट्स चेक। तो ये जो भी है वो बराबर है, वो 50,000 का 10⁻⁴ मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, Yes, तो sir. क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 हम अभी नहीं कर सकते, उसके बेस पे बाकी है। क्या मैंने लास्ट में ये 11 भी नहीं कर सकते? क्या मैंने ये लास्ट में 12 क्वेश्चन करा दिया कि बाकी है? करा दिया. Yes, sir. करा दिया सर। 12 क्वेश्चन मैंने करा दिया, वेरी गुड। तो अब है ना, आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। तो हाउ विल यू वेट द सन? सन का देखो, लास्ट लेक्चर में किसी ने मुझे पूछा था कि हम सन का मास कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हाउ विल यू वेट द सन? व्हाट इज द एस्टिमेट दैट इज एस्टिमेट इट्स मास? मतलब कैसे आप सन का मास मेजर करोगे? द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज समथिंग होगी। तो फ्रेंड्स, सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है, और मेरा जो टारगेट है ना, वो मुझे सन का मास फाइंड करना है। तो वापस से रिवॉल्यूशन वर्ड आया, वापस से सर्कुलर मोशन आया, तो वापस से हम क्या करेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू सर्कुलर मोशन आया, तो वापस से क्या करेंगे? नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड। सो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब यहाँ पे सन के आसपास अर्थ रोटेट होती है, तो यहाँ पे mv²/r में मुझे क्या लिखना चाहिए भैया? बोलो। अर्थ रोटेट होती है ना, तो mv²/r इज इक्वल्स टू जी मामा अपॉन r². तो म्याओ म्याओ कैंसल, और मुझे मास ऑफ सन को ही तो फाइंड करना है, तो खत्म बात। तो मास ऑफ सन को ही फाइंड करना है। rv²/g। अच्छा, एक और चीज कर सकते हैं, ये हमको रेडियस दिया हुआ है बट वेलोसिटी तो नहीं दिया हुआ है। तो क्या ये क्वेश्चन में कुछ और है इंफॉर्मेशन? वेलोसिटी तो नहीं है भैया, तो कुछ वेलोसिटी देना चाहिए तो फिर क्वेश्चन में, या तो दिया हुआ. के अंदर लिख दो
कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज 30 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस कर दिया है इन लोगों ने, यहाँ पे मेरे नोट्स के अंदर मिस हो गया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज 30 किलोमीटर पर सेकेंड। वो देना पड़ेगा तब जाके हमको मिलेगा, हमको मास मिलेगा भैया। तो ऐसा मान लो कि क्वेश्चन के अंदर ऑर्बिटल वेलोसिटी दिया हुआ है। ओके, तो चलो अब मास ऑफ सन को सब जगह इक्वेशन बना दो भैया। तो क्या बचेगा, v स्क्वायर इंटू आर अपॉन जी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने बताया ना आपको 30 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 30 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। रेडियस हमको दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, मतलब 11 मीटर अपॉन 6.67 10⁻⁻11। ये सब कुछ सिंप्लीफाई कर दो तो सन का मास ऑलमोस्ट कितना मिल जाएगा आपको पता है? क्या आंसर आने वाला है? 2 into 10⁻30 kg. That should be the answer. Is that clear, friends? Yes, sir. बात समझ में? Yes, sir. Okay. So how will you measure the mass of sun? So we can measure the mass of the sun by this method. So this is the answer. देखो 2.02 into 10⁻30, almost 2 into 10⁻30 आ गया. Is that clear? Is it understood, friends? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। 14 क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे? यस सर। Yes, sir. ओके, क्या लिखा है भैया? तो ये लिखा है कि सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स देन द अर्थ ईयर। तो सैटर्न जो प्लैनेट है उसका जो पीरियोडिक टाइम है उसका सन के आसपास का रोटेशन का वो कितना है? तो कि भैया अर्थ का जो है ना उससे 29.5 टाइम्स ज़्यादा है। हाउ फार द सैटर्न फ्रॉम द सन देन दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ का डिस्टेंस दिया हुआ है तो सैटर्न का कितना होगा? तो फ्रेंड्स हमको ये पता है, हमेशा से पता है कि केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन क्या दे रहा है। तो ये बोल ये रहा है सेकेंड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन कि कोई भी प्लैनेट का जो पीरियोडिक टाइम का स्क्वायर है ना वो उसके रिवॉल्यूशन के रेडियस के क्यूब के इक्वली प्रोपोर्शन में होता है। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि टी सैटर्न का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के टाइम्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आर सैटर्न क्यूब एंड सिमिलरली टी अर्थ स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर अर्थ क्यूब। तो मैं इसके ऊपर से डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसके ऊपर से। सो फ्रॉम दिस इट इज़ वेरी क्लियर दैट द पीरियोडिक टाइम ऑफ द सैटर्न अपॉन पीरियोडिक टाइम ऑफ द अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सैटर्न अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का क्यूब। ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या फिर इन दोनों का रेशियो निकालो तो भी ये आ जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. बट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सैटर्न का जो पीरियोडिक टाइम है जो ईयर है मतलब पीरियोडिक रोटेशन का पीरियोडिक टाइम वो 29.5 टाइम्स जो है अर्थ के जो है उससे इतना ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा 29.5 टी अर्थ अपॉन टी अर्थ स्क्वायर रेडियस ऑफ अ सन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। तो ये निकल जाएगा। अब मुझे बताओ 29.5 का स्क्वायर क्या होता है? 29.5 का स्क्वायर बताओ मुझे क्या होगा? 870.25. Yes, 870.25। 25. ओके, अब मुझे है ना क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो एक काम करो, आप सबसे पहले 870.25 स्पेस करो। किया? कैलकुलेटर yes, प्रेस किया। अब क्या करोगे आप? 2 टाइम रूट प्रेस करो। 2 टाइम रूट प्रेस करो। किया? yes, sir. फिर क्रॉस करो। Yes, फिर 4 टाइम रूट करो। yes, sir. फिर क्रॉस, फिर 8 टाइम रूट करो। Yes, फिर क्रॉस करो, फिर 2 टाइम रूट करो। इक्वल्स टू प्रेस करो। क्या आ रहा है इसका? 9.546. क्या आ रहा है?
9.546. 9.54, 6. तो 54 एक ऐड कर देना लास्ट में आपको एक ऐड करना है, ये रूल है। Yes. 9.547. So finally I can say the radius of the sun, Saturn around the sun is a 9.547 times than the radius of the earth. अर्थ का रेडियस तुमको दिया हुआ है कि 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है। तो इसको ये 9.547 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल रहा है देखो तो। 14.32. तो 14.32 into 10⁸ kilometers, that should be the answer for the Saturn. तो ये होना चाहिए आंसर। तो आ गया फ्रेंड्स 14.32। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अलग मेथड से किया हुआ है बट आंसर तो वही आ रहा है। देखो हमारा क्या आंसर आया था लास्ट में, उसमें पहला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद में क्यूब रूट निकाला है। तो हमारा आंसर आ रहा था 14.32 10⁸ किलोमीटर, दैट इज 14.32 10⁻11 मीटर। तो ये हो जाएगा 1.43 10⁻12 मीटर। तो वही हुआ ना, देखो लास्ट में तो वही आ रहा है, लास्ट में तो 1.43 10⁻12 मीटर ही आ रहा है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 1.43 लिखना है, 21.4 मतलब ये 2 गलत लिख दिया है। 2 एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2 को निकाल दो भैया, 2 को निकाल दो। 1.43 10⁻9 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 10⁻12 मीटर्स। ओके फ्रेंड्स, Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या किया है कि पहले ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है और फिर क्यूब रूट निकाला है। मैंने क्या किया, पहले क्यूब रूट निकालने के बाद मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब वो तो सेम टू सेम ही होगा, जैसे कोई भी हिसाब से करो यू गेट द सेम आंसर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, सो लेट्स सी वेदर इज देयर एनी अदर क्वेश्चन वी कैन सॉल्व। ओके, देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन दिख रहा है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे? Yes, sir. क्या लिखा है देखो, अ बॉडी वेट 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो वेट होता है ना, वो माँ जी होता है, और वो कितना मिला मुझे? 63 न्यूटन। चलो ये मिला मुझे इक्वेशन नंबर 1, इट इज ऑन द अर्थ। अब क्या है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज अ वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब वेट ही हुआ, ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट द हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस। मतलब हाइट पे जाना है जिसका रेडियस अर्थ से हाफ है, तो वहां पे क्या होगा वेट। तो वेट फाइंड करने के लिए पहले वहां पे जी फाइंड करना पड़ेगा। तो वेट फाइंड करने के लिए वहां पे जी फाइंड करना पड़ेगा। तो जी एट दैट हाइट, मुझे क्या कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, हाइट वाला, बोलो बताओ। क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, मुझे ये बताओ, क्या मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं ये फॉर्मूला? ये नहीं कर पाएंगे, क्यों? बिकॉज इट इज वैलिड ओनली व्हेन द h इज वेरी वेरी लेस देन re, and here h is what, here h is equals to re by 2, it is not the very very less than re, it is a half of the re, so we cannot apply this formula for the height। तो फिर बताओ मुझे, तो फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? CME upon RE plus H तो square. फिर आपको पता है कि जमी के ना जमी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है भैया आपको। तो ये हो जाएगा जमी अपॉन RE प्लस RE by 2, बिकॉज हाइट का जो वैल्यू है ना वो RE by 2 है, और उसका करना पड़ेगा आपको स्क्वायर। तो मतलब डिनोमिनेटर में 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। तो कैन आई से इट इज अ जमी अपॉन 3/2 RE द होल क्यूब होल स्क्वायर।
तो कैन आई से इट इज अ GME अपॉन RE स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर में 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4, तो 4/9 इंटू 4/9. तो कैन आई से इट इज अ 4/9 इंटू G एट अर्थ, बिकॉज ये जमी अपॉन अर्थ, तो अर्थ के सरफेस का एक्सेलरेशन है. So weight at that height is equals to mg at that height. तो m इंटू 4/9 इंटू G at earth, तो ये हो जाएगा 4/9 टाइम्स mg at earth. बट ये mg at earth तो मुझे पता है पहले से ही कितना है, 63 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू 63. तो 9 7 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28. तो द आंसर शुड बी इक्वल टू 28 न्यूटन. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? यस सर। ओके, इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। A good question. 28 is the answer. Chalo, next question is almost the similar one. So today's last question, but it is almost similar one. Assuming that Earth is Earth to be a sphere of a uniform mass density, how much would the body weight halfway down the center of the Earth? Its weight 2.250 Newton on the surface. Surface पे उसका जो weight है ना वो 250 न्यूटन है. तो हाफ डेप्थ पे वो कितना होगा, हाफ ऑफ द डेप्थ पे वो वेट कितना मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है. अर्थ के सेंटर से हाफ द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस, व्हाट इज द इट्स वेट. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैं ऐसा कह सकता हूँ. आपको पता है कि सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ना वो RE माइनस D होता है. देखो ये अर्थ है, ये उसका रेडियस RE है, और सेंटर से ऐसा दिया हुआ है कि रेडियस के हाफ डिस्टेंस पे. तो ये R अज्यूम कर लो, और ये जो है ना उसको D अज्यूम कर लो, डेप्थ. तो R ऑब्वियसली R प्लस D इज कंबाइंडली फॉर्मिंग RE. तो D का वैल्यू कितना हो गया भैया फ्रेंड्स, और R का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, RE माइनस D होगा. तो फिर D या फिर D का वैल्यू कितना होगा भैया, हमारे लिए D काम का है. तो डेप्थ कितना है वो मुझे फाइंड करना है. तो भाई सीधी सी बात है, तो डेप्थ का वैल्यू कितना आएगा भैया, तो जो आपका सरफेस है अर्थ का रेडियस है उससे उसका सेंटर का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दो. तो दिया है कि एग्जैक्टली द हाफ, तो ये हो जाएगा आपका RE/2. चलो ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स, RE माइनस. अब G at depth is equals to G at earth 1 minus D by RE. Yes or no? तो G Yes, at earth 1 minus, अब D का वैल्यू कितना है, तो बोले RE/2 अपॉन RE. RE गेट कैंसल्ड, तो ये हो जाएगा GE इंटू 1 माइनस 1/2. तो 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 GE. अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड से मास को, दोनों साइड मास से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो मास इंटू G एट द डेप्थ D इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स मास इंटू G एट द अर्थ. तो ये हो जाएगा माजी मतलब वेट, बट वेट एट द डेप्थ D, एंड दिस विल बी द वेट एट द अर्थ सरफेस. तो अर्थ सरफेस पे जो वेट है ना वो 250 है. तो फॉर द गिवन डेप्थ व्हाट शुड बी द वेट, 125 न्यूटन. सो दैट शुड बी 125 न्यूटन. आया बात समझ में फ्रेंड्स? यस सर. बात समझ में आया? यस सर. ओके, सो फ्रेंड्स आज हम यहाँ तक रखते हैं. हम वापस से मिलेंगे, कब मिलेंगे? ट्यूसडे. गलत जवाब. Monday. कल. जस्ट अ मोमेंट. आज का तो सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स.